Mhm. Mhm. Okay, so, right. Okay, I think let's start. We'll wait for others to join in as and when they do. Firstly, everyone, thank you very much for joining. I hope I'm audible. And as you know, I'm Smriti Sharma. I am the center head for Startup Accelerator Chamber of Commerce Gurugram. Uh, Today morning, again, we woke up to a very unfortunate news about the gas leak in Vishakhapatnam. I would, as I always say, urge students to take this incident. Of course, it is very sad, but as a learning, we all are here for a limited time and let's make the most of it. The circumstances around us are very uncertain. This is probably the worst India has seen since partition. But there is always a learning in every incident, in every situation we are. So let's try and absorb what we can, do our best, and pray for things to get better soon. On this note, I would like to introduce Dr. Tarun Dhingra. Firstly, thank you very much, Doctor, to give your time. I know you're very busy, but yet you gave us this time for the webinar. Thank you very much. Dr. You're Tarun, welcome. Dr. Tarun Dhingra is a faculty and professor at School of Business and University of Petroleum and Energy Studies in Dehradun. His areas of specialization is energy policy, Indian power station, renewable energy, low cost carries, business studies, strategies, sport performance, strategic CSR, and much more. I would not waste much time. But, sir, I'm sure the students can learn a lot from you, and I can't thank you enough for making time for this webinar today. So, I would like to pass on the, as they say, the mic to you, sir. Thank you. Thank you. How many participants we already have? Right. Could you? Yes. So, right now we have only 15, but I believe there are others which will be joining in soon, sir. Okay, fine. Okay. Uh, Good morning, everybody, or rather, it's now good afternoon, everybody. So, I am told that there are a lot of students who are interested to understand entrepreneurial mindset, and maybe they would also be interested in having their own startup or doing their own business over a period, although they are right now going through a professional course. So, I find this area quite attractive because fortunately, our university also has eCell. We have a registered incubator also, and I am instrumental in with some of the students who are actually pursuing some of their ideas and even gone up to a good level. Like recently, one of our student, it's a combination, it's a team of two students who have actually now gone up to an advanced stage. They have presented their work and now they are shortlisted in top 10, and they are supposed to now give the final what you call it proposal for funding. So, and we have already funded some of them, we have already incubated some of them. So it looks quite good when somebody wants to start their business, because it's actually quite heartening to know that we may actually end up becoming a job provider rather than a job seeker. So before we start, I have tried to make a small session on entrepreneurial mindset, and we will start with understanding in terms of what exactly is this entrepreneurial mindset, how does it link with Indian way of living and Indian way of doing things. Then we will also come to exact nitty gritty of business. Like first we will understand ki, let me also try to use Hindi along with English, because I think we would be in a better position to communicate. तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा एक्चुअली बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो हमारा जो बेसिक आइडिया है जिसे हम वैल्यू प्रोपोजिशन बोलते हैं वो क्या है और वो क्यों अट्रैक्टिव होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। फिर उस वैल्यू प्रोपोजिशन को समझने के बाद हम उसका रेवेन्यू साइड और कॉस्ट साइड पर डिस्कशन करेंगे, ताकि हम समझ पाए कि अगर हमें इसको सच में आगे बढ़ाना है तो किस एंगल से हमें रेवेन्यू साइड और कॉस्ट साइड को पकड़ना चाहिए। फिर हमको ये अंडरस्टैंडिंग जिसे हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में और स्ट्रेटेजिक लिटरेचर में बिजनेस मॉडल कहते हैं, हम इस पर आएंगे।
उसके बाद हम ये पूछेंगे कि आपके कस्टमर कौन है, क्या आपको इसका आइडिया है और आप कैसे उन तक पहुंच सकते हैं। ये कंसेप्चुलाइजेशन लेवल तक है। उसके बाद हमारा एक बेसिक पॉइंट आएगा कि अगर मेरे पे आइडिया है तो मैं आगे क्या करूं, मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊं, मेरे पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं कहाँ कहाँ पर इनको पेश कर सकता हूं, मैं कहाँ कहाँ पर जो हमारे फंडर हैं या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या एंजल इन्वेस्टर हैं, इन तक पहुंच सकता हूं। इसके बहुत सारे जिसे कहते हैं कंपटीशन कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं और अदर इंडिया के हर बड़े इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो आईआईएम हो, आईआईटी हो, इवन हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर सेल है, हमारे पास एक रजिस्टर्ड इंक्यूबेटर है। क्योंकि जिनको आइडिया नहीं है उन्हें बता दूं कि अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने जाते हैं और स्टार्टअप में रजिस्टर करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो वो आपसे दो चीजें जरूर मांगते हैं बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अलावा। पहला, आप एक इंक्यूबेटर से आपके पास लेटर हो, यानी इंक्यूबेटर ने आपके आइडिया को परखा है, समझा है, उसे लगता है इसमें पोटेंशियल है, इसे आगे ले जाना चाहिए। तो दीज आर द थिंग व्हाट वी विल डिस्कस। एंड सेकंड इज कि इसके बाद आपको फंडिंग का भी एक लेटर चाहिए होता, विच इज ए व्हाट यू कॉल इट ए चैलेंजिंग नट टू क्रैक, बिकॉज थैंकफुली आज हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आप जैसे स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं और बहुत सारे आइडिया आते भी हैं जो अलग अलग स्टेजेस तक जाते हैं। बट ये बहुत लर्निंग वाला फेस है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। एंड इफ इट क्लिक्स देन you become talk of the town, you become a celebrity, and I think that is one of the very good, and it's an achievement जिसे कहते हैं कि मैंने अपना कुछ किया, तो वो उससे बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। तो ये सब चीजें मैं अगले 20-25 मिनट पे आपसे बात करूंगा। आपने एक चीज सुनी होगी जो भारत में बड़ी कॉमनली बोली जाती है, वो है उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी। ये मैंने अपने फादर से सुनी थी, फादर कहते थे, उन्होंने अपने फादर से सुनी थी। तो ये हमारा एक जिसे कहते हैं ना एक मुहावरा, लोकोक्ति, इट्स अ कॉमन विजडम विच इज अवेलेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो इसमें हमारा जो लॉजिक है आप उसको समझें कि हम क्यों कृषि को उत्तम, क्यों व्यापार को मध्यम और क्यों नौकरी को निकृष्ट कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनने में, क्योंकि जो ये आपको बता रहा है वो खुद इस समय जॉब कर रहा है, यानी मैं ऑलरेडी थर्ड लेयर पर हूँ। बट मेरे पूरी फैमिली में पिछले सिर्फ 2 पीढ़ी छोड़कर कभी किसी ने जॉब नहीं की, हमेशा बिजनेस किया। बट वी केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम पार्टीशन, तो हमारा स्थिति उस समय जैसी भी रही, नहीं कर पाया। अदरवाइज हमारी फैमिली में नौकरी करने के नाम पर वायलेंस शुरू हो जाती थी कि बिजनेस कौन करेगा फिर। तो वी हैड दैट काइंड ऑफ लीनियज। उत्तम कृषि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें रिस्क टेकिंग है और हाईएस्ट है। व्यापार को मध्यम इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यापार कृषि से नीचे है रिस्क टेकिंग में, बट ऑब्वियसली नौकरी करने से ऊपर है। और तीसरे लेवल पे कहते हैं जब हम बिल्कुल रिस्क टेकर नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ जो सामने अवेलेबल है अपनी स्किल के द्वारा उसको जस्ट कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसलिए एक चीज आप समझ लीजिए, व्यापार करना बहुत अच्छा काम है और व्यापार करने के लिए सूझबूझ चाहिए। व्यापारी आदमी कभी भी कम आईक्यू का नहीं हो सकता है, व्यापारी आदमी व्यवहार कुशल नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो व्यापार को कभी नेगेटिव मत देखिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ओईसीडी, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इट्स अ वर्ल्ड वाइड मल्टीलेटरल बॉडी। ओईसीडी ने एक रिसर्च करी जो आज भी ओईसीडी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एंड देयर इज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन व्हिच इज कॉल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मैडिसन, ANGUS मेडिसन, MADDISON। अगर आप इसको लिख के सर्च करेंगे तो उन्होंने अवेलेबल डेटा पर एक सर्च करी कि फर्स्ट एडी से, जिसको हम आफ्टर क्राइस्ट शुरू करते हैं, फर्स्ट एडी से लेकर अप्रोक्सीमेटली 20th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में, वेस्ट में, ईस्ट में, बड़ी बड़ी जो भी कंट्रीज रहे हैं उनमें उनका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कितना रहा है। ये स्टडी आप समझ सकते हैं काफी बड़ी थी, इसको करने में उन्हें 6 से 8 साल लगे। और ये रिपोर्ट आज पब्लिकली अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। फर्स्ट एडी से 1400 एडी तक हमारा जीडीपी में, दुनिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिनिमम 33 to 35% रहा है, यानी पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/3 अकेला इंडिया देता था।
और दूसरा जो बड़ा कंट्री जो ये देता था उसे हम चाइना बोलते हैं। हमारा और चाइना का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड अप टू 1400 सेंचुरी मिनिमम 45 एंड मैक्सिमम 60% रहा है। यानी आप समझ सकते हैं ये दो देश हटा दो तो पूरी दुनिया में कुछ था ही नहीं। अब मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूं, ये क्यों होता था? उस समय तो हमारा इस तरीके से गवर्नमेंट होती नहीं थी। ये इसलिए होता था क्योंकि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप कल्चर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग व्यापार का ओरिएंटेशन रहा है कि हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में वहां तक फैला था जहां तक भी हमारे पास कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन के साधन अवेलेबल थे। चाहे वो जहाज के थ्रू बिजनेस हो, चाहे हमारे मसालों का ट्रेड हो जो केरल से मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक जाता था। ये आप समझ लीजिए कि ये स्टार्टअप हमारे लिए नया नहीं है। हमने पूरी दुनिया में एक तरीके से अपनी हमारी तूती बोलती थी सिर्फ हमारी बिजनेस करने की कैपेबिलिटी को लेकर। तो अगर आप सोच रहे हैं ये करने को तो आप समझ लीजिए आप उसी लीनियज में आगे बढ़ रहे हैं। यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु इज डूइंग इट एंड डोंट बिलीव यूएसए यूके आर द वेरी बिग स्टार्टअप कंट्री। दे हैव बिकम गुड स्टार्टअप कंट्री इन लास्ट 2 centuries बिकॉज हम पहला रीजन ये था कि वी वर नॉट इवन इंडिपेंडेंट। हम करीब 200-250 साल जो डार्क एज रहा है इसकी वजह से हम बहुत डीग्रोथ हुए हैं। हमारी जीडीपी 0.3% वर्ल्ड के कंट्रीब्यूशन में पहुंच गई थी जो 40% होती थी, बट वी कैन ऑलवेज कम बैक। तो एक तो ये आपको बता दूं कि हमारा बहुत लॉन्ग ट्रेडिशन है और हम उस ट्रेडिशन को वापस ला के रहेंगे और मेरे ख्याल से आप जैसे स्टूडेंट ही इसको लाने में आगे करने वाले हैं। अब आप दूसरी चीज समझिए, अगर हमें बिजनेस करना है तो सबसे पहले बिजनेस वाला आदमी क्या देखता है? बिजनेस वाला आदमी अपने चारों तरफ वो समस्या देखता है जो कस्टमर को हो रही है और कोई उसको सॉल्यूशन नहीं दे रहा। यानी जिसको हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं ही ट्राइज टू फाइंड आउट ए लैक्यूना। एक मार्केट में गैप है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अप टू 2010, 12, 13, 14, 15 हम लोग दूसरे शहरों में जाते थे। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं तो हमारी यूनिवर्सिटी सारी जगह हमारा होटल्स का इंतजाम कर देती थी। मगर जो लोग अपने आप जाते थे वो किसी नए शहर में पहुंचते थे तो क्या करते थे? मेरे फादर मुझे बहुत जगह घुमाने ले गए। हम क्या करते थे? हम स्टेशन पे उतर के ढूंढते थे अच्छे होटल कौन से। अब अल्टीमेटली अब हम कैसे करते हैं? एक कंपनी आई ओयो, उसने इस प्रॉब्लम को समझा, इस प्रॉब्लम पर उन्होंने एक ऐप बनाया और बहुत सारे होटल इस चेन पर ऐड कर दिए। उसकी वजह से आज ये दिस इज कॉल्ड, जिसे हम एक स्टार्टअप लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये एक $1 बिलियन वैल्यूएशन क्रॉस करने वाला आइडिया हो चुका है। इसका ऑलरेडी वैल्यूएशन $3-4 बिलियन से ऊपर है। जितना इनका बिजनेस इंडिया में है उतना ही ये चाइना में ऐड कर चुके हैं। नो डाउट इस समय तो सभी लोग रफ फेस से जा रहे हैं, बट दे हैव डन इट। इसके अलावा आप समझिए हमको टैक्सी चाहिए घर पे, इट्स अ प्रॉब्लम। वो क्या सॉल्यूशन हुआ? ना तो यहाँ तो हमारे पास एक किसी टैक्सी वाले का नंबर है जो हमारे घर के आसपास रहता है, मगर दूसरे शहर में जाए तो क्या करेंगे? टैक्सी स्टैंड पे जाइए। अब हम ये सब नहीं करते। यू नो इट इज वेरी इजी। हम सिंपल ओयो से, सॉरी सिंपल आपका उबेर से, ओला से, ये सब एक बिजनेस आइडिया है। इसके अलावा आपने स्विगी, आप स्टूडेंट है, आपने बहुत बार इसे यूज किया होगा कि चलो खाना स्विगी से मंगा लो, चलो खाना जोमेटो से मंगा लो। इट्स एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो बिजनेस लिटरेचर है, जो बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं और जो मार्केट है, आप यहाँ पर सिर्फ अपनी आंखें खुली रखिए। अगर आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, आपको चारों तरफ समस्या दिखाई देंगी। और यही समस्या, एक समस्या जो अगर आपको क्लिक कर गई और उसका आपका लॉजिक समझ में आ गया कि ये एक समस्या है, क्योंकि अगर समस्या होगी और आप उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे तो आई कैन टेल यू वो सॉल्यूशन हाथों हाथ कस्टमर लेता है। बिकॉज वो तो इस समस्या से जूझ रहा है, बहुत समय से परेशान है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक आइडिया देता हूं। मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी को लिखा भी था। आपने देखा होगा, आप नया लैपटॉप खरीदो, नया फोन खरीदो, उससे पहले बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदो तो वो आपको एक बड़ी सी बुकलेट देते हैं जिसमें होता है स्टेप 1, ऐसे आप फोन खोलेंगे, ऐसे उसमें सिम डालेंगे। आप वो बुकलेट दुनिया में किसी भी तरीके से बना लीजिए, वो बुकलेट पढ़ के कभी किसी को प्रोडक्ट चलाना नहीं आया। जबकि वो बुकलेट बनाने में हमारी खूब एनर्जी लगती है। 60-80 पेज की बुकलेट बनाते हैं। 8 से इंटरनेशनल प्रोडक्ट में 8 से 10 लैंग्वेज में बुकलेट बनाते हैं। मैंने उन कंपनी को एक को लिखा भी, मैंने कहा आप ये सब एफर्ट मत कीजिए, आप प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट को डब्बे से खोल के फंक्शन बनाने का वीडियो बनाइए। वो वीडियो हार्डली 3 से 4 मिनट का होगा और वो वीडियो बनाकर आप
साथ में जो भी प्रोडक्ट ले रहा है उसका आप लिंक दे दीजिए या सिंपल कह दीजिए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, कोई लॉगिन की जरूरत नहीं है, एनीबडी कैन सी इट। जो मेरे लिखने के बाद सम कंपनी हैव इवन स्टार्टेड डूइंग, बट अभी भी बहुत सारी कंपनी उसी में चल रही, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस है जो चल रहा है उसे चलने दो, बट इट्स अ प्रॉब्लम। आप खुद जानते हैं कि कभी वो बुकलेट पढ़ के वो प्रोडक्ट चलाना हमें नहीं आया, तो हम क्यों इतनी एनर्जी यूज करते हैं। हम जस्ट सेइंग इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जैसे I think, okay, can anyone hear me right now? Okay, just allow me some time. I think Dr. Dhingra's connection has dropped. I'm just trying to get him on board. Please allow me some time. I'm just trying to reconnect with him. Thank you. Oh, I think Dr. Dhingra is back with us. Okay, Dr. Dhingra? Yeah, I don't know. It got disconnected, maybe because of net connectivity. Yes, sir. Everyone No is other facing the same problem. I'm sorry to the participants, and I'm sorry, sir, you had to go through this. Everyone over here is No, facing it's the same okay. problem. It's okay. You don't need to be sorry. Sorry, all the people who were listening, it got disconnected. So I don't know. I just reconnected again. Thank So you we very were discussing in terms of value proposition कि मेरा particular product या service कोई भी कस्टमर क्यों लेगा। मेरे पास जो ऑफरिंग होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो मेरे कस्टमर की कोई समस्या सॉल्व करती होनी चाहिए। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अभी लॉकडाउन शुरू हो गया, अब हमको, जैसे हम यूनिवर्सिटी हैं तो हमको अपने स्टूडेंट के साथ हमारी क्लासेस, क्योंकि सेमेस्टर के बीच में हुआ, हमें कंटिन्यू करना है। हमारी समस्या क्या है, हाउ टू टॉक टू देम। नाउ वी हैव गॉट कम्युनिकेशन मीडियम, बट हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हम फेस टू फेस भी बात करें, ऑल्दो इट कुड बी वर्चुअल। तो आपने देखा होगा कि आज जूम, इस समय ये मीटिंग भी जूम पर चल रही है। यही जूम अभी मार्च से पहले कितने लोग यूज करते थे, बहुत कम। बट जूम एज एन अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल था। इवन गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट टीम करके एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इवन नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म वैसे भी चाहिए लॉन्ग समय के लिए। तो ये एक पॉइंट है जो आपको समझना है। आपके लिए बिजनेस समझने का सीधा सा लॉजिक है, ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेस वालों की बात सुने, उनके वेबिनार, उनके यूट्यूब वीडियोस देखें, मार्केट में जाएं, और हर एक का एक फ्लेयर होता है। किसी को कोई चीज ज्यादा समझ में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल at present there are a lot of students who are interested to solve things with the help of internet. जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्विगी, जोमेटो, ओयो दिया, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट है इंटरनेट। ये बिना इंटरनेट के सॉल्यूशन नहीं आ सकते, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। फिजिकल फॉर्म में वो प्रोडक्ट हैं, बट उन तक जाने का जो मेथड है वो वर्चुअल है। तो अभी जो बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं, इवन इफ यू गो थ्रू द गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडस्ट्री, गवर्नमेंट स्टार्टअप वेबसाइट, उसमें आपको दिखाएगा कि करीब 2/3, 2/3 ऑफ द आइडियाज विच आर अवेलेबल is actually related to solving problem through a digital solution.
अब ये डेटा सॉल्यूशन ऐप से भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं I did my 10th in 1989, quite old in that sense. Now on that time, if you want to understand from something, you have only one way: either you go to the class teacher or you go for a tuition. No other option. Nowadays, what are the options? I see my own son and daughter using phone, and you can't tell they are playing, because sometimes they are playing and sometimes they are actually listening to what you call it. They go to Bajus. They go to a lot of YouTube video like how to do this, and moment you write it, you have n number of material available. So YouTube itself become a very high amount of business for Google. So what we need to understand is हमारी जो बेसिक नीड है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, फूड है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो 5000 साल पहले भी थी, 5000 साल बाद भी होंगी. इनका मेथड बदलेगा, इनका मीडियम बदलेगा. हमारे पास कोई और तरीका नहीं था पहले कि हमारा मन नहीं है खाना बनाने का और हमारा बाहर जाने का भी मन नहीं है, तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं. आज हमारे पास अगर ये दोनों मन नहीं है तो भी सॉल्यूशन है. फूड विल कम टू योर होम, इवन फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट व्हिच यू बिलीव इट इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट. ये सब चीजें करने के लिए, और ये एक्चुअली समस्या आपको रोज फेस आती है. आप समझ लीजिए जो समस्या आपको रोज फेस आती है वो खुद ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो. जस्ट दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो कुछ नहीं करता, वो अपने आसपास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है. वो हर समय पर्टिकुलर समस्या को he or she try to see problem from one simple point of view, that is it problem solvable, can I solve it. Now ये है हमारी बेसिकली फर्स्ट स्टेप कि हमें चारों तरफ अपनी समस्याओं को देखना है जो अभी भी सॉल्व नहीं है, काफी समय से है. हमें देखना है क्या इसका बिजनेस हो सकता है, क्या ये समस्या इतनी है कि अगर मैं सॉल्यूशन दूं तो कोई अपनी जेब से पैसा देगा. अल्टीमेटली हमारा बेसिक लॉजिक है विलिंग टू पे. अल्टीमेटली कस्टमर पैसा देने को तैयार होना चाहिए. कस्टमर कब पैसा देता है? आप सब कस्टमर है, हम सब कस्टमर हैं. इवन बिजनेसमैन खुद में एक कस्टमर है. कोई भी इंसान बिना कस्टमर नहीं है. हमको सिर्फ एक लॉजिक से देखना है कि वो पैसा क्यों, या मैं खुद सोचूं मैं इस चीज के लिए पैसा क्यों देता हूं, मैं क्यों ओयो को पैसा देता हूं, मैं क्यों बैजूस को पैसा देता हूं, मैं क्यों जिसे कहते हैं आपका ओला उबेर को पैसा देता हूं. आई गिव मनी टू मेनी थिंग्स. वो पैसा मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मेरी कोई समस्या सॉल्व होती है या मुझे बहुत कन्वीनियंस से वो चीज हो जाती है. मैं उसे कर सकता हूं मगर मेरे को उसमें 3 घंटे लगेंगे, मैं क्यों करूं, मैं 100 रुपए दूंगा, कोई और कर देगा. लोग उसका इजीली बिजनेस कर सकते हैं. तो पहला पॉइंट है वैल्यू प्रोपोजिशन. मैं ऐसा क्या ऑफर कर रहा हूं जिसे कहते हैं कि आपने इफ इन ए ह्यूमरस लैंग्वेज, देयर इज अ वेरी फेमस मूवी कॉल्ड गॉडफादर, and there is a very famous dialogue in that movie which says, I will offer him something which he cannot refuse. That's the same thing. Agarwal जो ओयो का ओनर है, he has offered us something which we cannot refuse. Simple. Everybody is trying. For example, आपने इस समय देखा होगा लोग हर समय एक पर्टिकुलर जगह जाके नहीं पढ़ना चाहते, सीखना चाहते. उनका एक नीड है कि मैं अपने घर पे, अपने बेडरूम में, अपने बेड पे लेटे हुए भी पढ़ना चाहता हूं, मैं जैसे चाहूं, मेरी अपनी मर्जी से, मेरे पेस पर. उसका आंसर क्या आया? बिकॉज ऑफ ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, मूव कोर्सेज. आज हमारे पास कोर्सरा है, यूडेमी है, एडुनेक्स्ट है, देयर आर मैनी. और इवन हमारे गवर्नमेंट के अपने हैं, एनडीपीएल है, और आपका जिसे कहते हैं कि व्हाट यू कॉल इट, इसके स्वयं हमारा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. मैं खुद इस समय जिसे कहते हैं कोर्सरा पे 2 या 3 कोर्स कर रहा हूँ. वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के कोर्सेज अवेलेबल हैं. इट विल हेल्प मी टू अपग्रेड माय स्किल. ये एक मेरी नीड है. अब जिसे कहते हैं ना एजुकेशन, मैंने आपको एक नीड बोली. एजुकेशन के अंदर बहुत सारे वर्टिकल हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन. ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है. You can even do a course on calculus by MIT. You can do a course of artificial intelligence from MIT, which is considered one of the best university related to AI. ये सब चीजें. नीड क्या है? मैं अपने पेस पर, अपनी मर्जी से, अपने टाइम पर, अपनी सहूलियत से कोर्स करना चाहता हूँ. आई कैन डू दैट. आप खुद कर सकते हैं. ये चीज आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने 2013-12 के आसपास कोर्सरा में कोर्स किए थे, उस समय ये कोर्स के पैसे भी नहीं लेते थे.
वो सिर्फ कहते थे कोर्स कर लो, they were actually making it free. Now later on आइडिया अच्छा था, people realizes now coursera पे लगभग सारे courses paid हैं, और if you require financial assistance then you can get it. So it's a very idea which you can do it. I'm just saying even university can come up with an idea. Now this is a platform where universities are listed. So this gives you a very good idea how to start. आपको समस्या देखनी है. Second point, अगर आपको कोई समस्या समझ में आती है जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, अब आपको ये देखना है कि जैसे ही आप कोई चीज करना चाहते हो तो पहली चीज आती है कॉस्ट. आपकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े सेगमेंट को अटैच करना चाहते हो, शुरू में अपना स्कोप कितना रखना चाहते हो. एवरीबडी वांट्स कि मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में हो, बट ऑब्वियसली यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम दैट अनलेस एंड अनटिल आपका ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है. रिलायंस कैन स्टार्ट समथिंग ऑल इंडिया लेवल, वी मे नॉट बी. रिलायंस इटसेल्फ डिड नॉट स्टार्टेड ऑन एन ऑल इंडिया लेवल. तो हमें क्या करना है, हमें उसका कॉस्ट एंगल देखना है. कॉस्ट एंगल देखना है, जैसे मेरे एक दो स्टूडेंट है जिनका मैंने आपको बताया कि इस समय काफी एडवांस स्टेज पर हैं. वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक आइडिया बनाया. वो जिस दिन मेरे पास आइडिया लेके आए थे, मैंने उनसे बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, सिंपली 3-4 क्वेश्चन पूछे थे. वो उन 4 क्वेश्चन का में से अभी भी 2 या 3 का आंसर ला पाए, पूरा नहीं ला पाए. दे आर वर्किंग, वो अभी भी टच में है, बट वो काफी आगे आ चुके हैं और इट इज बीइंग अप्रिशिएटेड. पहला क्वेश्चन ये था कि भाई जिस पर्टिकुलर आप चाह रहे हो, आपको मालूम है कि मैं अगर ये सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो मेरी इंडस्ट्री जो है, खासकर जो एनर्जी से रिलेटेड है, वो लेंगी. मैं आइडिया तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा उनका, तो वो कंपनी लेंगी. तो मैंने पूछा कि वो क्यों लेंगी, तुम क्या ऑफर कर रहे हो जो वो कहेंगे कि मेरी समस्या सॉल्व होती है. ये चीज मैं बिना आपके सॉफ्टवेयर के करता हूं तो मेरे 1000 रुपए लगते हैं, आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लूंगा तो मेरे तो 500 में काम होता है, तो मैं तो इससे लूंगा ही लूंगा. तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसका उन्होंने आंसर लगभग बना लिया है, विच इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय इवन वेंचर कैपिटलिस्ट. सेकेंड आइडिया है कि मैं ये सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी. अब सॉफ्टवेयर में आप क्या इंडिकेटर्स डालोगे उस पर डिपेंड करेगा आपकी कॉस्ट कितनी आएगी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू कॉस्टिंग पर वो अभी भी काम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्हें खुद पढ़ना पड़ रहा है, और ब्लॉकचेन के अभी भी हमारे इंडिया में उतने स्पेशलिस्ट नहीं है. तो दे आर वर्किंग ऑन इट, ताकि वो इसका कॉस्ट एंगल पूरा ले पाए. कॉस्ट में उनका 50-60% आ गया है, ये 50-60 बचा हुआ है. फिर मैंने उनसे पूछा है कि आपके कस्टमर कौन होंगे, वो कहां पर हैं, और आप उन तक कैसे पहुंचोगे. उन तक पहुंचने में आपकी कॉस्ट है, वो कौन है और कहां पर है, ये आपको क्लैरिटी चाहिए. उन्होंने एक लिस्ट बनाई है इंडस्ट्रीज की कि ये इंडस्ट्रीज हैं जिनकी ये नीड है, और नीड वो प्रूव कर पा रहे हैं उन्हीं के एनुअल रिपोर्ट से. और ये कह रहे हैं कि ये 150-200 हैं जिसमें से हम शुरू में पहले इस एरिया में, एक पर्टिकुलर स्टेट में, इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के 40 से 50 कंपनियों से स्टार्ट करना चाहेंगे. अब इस पर वो अपने रेवेन्यू, फिर हम कह रहे हैं कि अगर मैं उन्हें सॉफ्टवेयर इश्यू करूंगा तो मैं उनसे किस तरीके से पैसे लूंगा. यानी मैं उनको कह सकता हूं कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर बना के बेच दिया, आप मुझे वन टाइम पेमेंट दे दीजिए, साथ में आप एनुअल मेंटेनेंस दे दीजिए, या मैं आप सॉफ्टवेयर नहीं देता, आप मुझे समस्या दीजिए, मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व करके जब जब आप प्रॉब्लम बोलेंगे मैं सोल्यूशन बना बना के देता रहूंगा. तो यू एम्प्लॉय मी एज ए व्हाट यू कॉल इट, आप मुझे इसका कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए. अब इन दोनों केस में हमें ये लॉजिक को करना है. नाउ वी गेट बैक टू, ये हमारा बिजनेस मॉडल का पार्ट हो गया. कस्टमर कौन है, वो सेगमेंट कौन सी है, और मैं उन तक कैसे रीच करूंगा. अब जो हमारे लास्ट के 8-10 मिनट हैं, लेट अस ट्राई टू वर्क ऑन 2 थिंग्स. फर्स्ट, अगर मेरे पे आइडिया है तो मैं इसको कैसे आगे ले जाऊं. आप पहला एक समझिए, हर बड़ी यूनिवर्सिटीज में, और बहुत यूनिवर्सिटीज खुद इस समय ऑनलाइन स्टार्टअप आइडियाज के कंपटीशन करती हैं. अगर आप नेट पे लिखेंगे यू विल फाइंड नंबर ऑफ दैट. बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे, इवन राइट नाउ कंपनीज करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई अच्छा आइडिया होगा तो हम ही खरीद लेंगे. तो हमें इन पर्टिकुलर पर अपने आइडिया को लेके जाना है. पहले हमें अपने आइडिया अपने उन लोगों से जिनको इसकी समझ है डिस्कस करना है, इसको एक स्ट्रक्चर देना है, इसको एक फेम देना है. उसके बाद मुझे इन प्लेटफॉर्म पे जाके उन्हें प्रेजेंट करना है. माइंड माय वर्ड्स, इन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे बिजनेस इनसाइड वाले लोग बैठे होते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे आइडिया देते हैं, रेदर आपको फोर्स करते हैं कि आप इसको पूरा स्ट्रक्चर बना दो.
जैसे अभी मेरे 2 स्टूडेंट के साथ इस समय हो रहा है। तो आपको वहां जाना है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में यूपीएस देहरादून में हमारा अपना ईसेल है, हमारा रजिस्टर्ड इंक्यूबेटर है, हमारी कंपनी खुद की रजिस्टर्ड कराई हुई है अब तक, और हम स्टेट गवर्नमेंट से और नेशनल स्टार्टअप मिशन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। इवन स्टेट उत्तराखंड गवर्नमेंट से हमारा सीधा लिंकेजेस है। हम कंपनियां इंक्यूबेट भी कर चुके हैं और ये हमारे अपने ही स्टूडेंट्स की कंपनीज हैं जो ये हम कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली इसमें आपको एक कंपटीशन फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी आप जाएंगे, एक पैनल बैठा होगा, आप उस पैनल को अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे और आपको फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपका वहां तक पहुंचता है, उसके बाद आप समझ लीजिए फंडिंग अपने आप आती है, प्रोवाइडेड उस लेवल तक आपका आइडिया पहुंच चुका होता है। तो उस तक आपको 2-3 राउंड करने पड़ते हैं, बिजनेस के बेसिक क्वेश्चन को आंसर देना पड़ता है, और कई बार आपको अपनी टीम भी बनानी पड़ती है, क्योंकि कई बार वो पसंद करते हैं कि आपका जो बिजनेस का लॉजिक है, अगर मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं और मेरे दोनों स्टूडेंट जो हैं वो खुद बीटेक है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, नाउ इट मेक सेंस कि ये समझते हैं। तो ये एक पूरी जर्नी है जो हमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की करनी है। मैं लास्ट में 1 to 2 मिनट आई विल जस्ट समराइज इट। फर्स्ट, हमारा पूरा कल्चर रहा है स्टार्टअप का, हमारे लिए नया नहीं है, हमने पहले किया है, हम फिर कर रहे हैं और करेंगे। दूसरा, इट विल स्टार्ट विद ए प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करेंगे, जो बनेगी आपकी व्हाट यू कॉल इट द वैल्यू प्रोपोजिशन। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि हम इस पर आपको जिसे कहते हैं इसकी कॉस्ट साइड और इसकी हमारी रेवेन्यू साइड पर हमें आंसर लेना है। थर्ड, हमको इस आइडिया को अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, इंक्यूबेटर्स में लेके जाना है ताकि इसको हम आगे ले जा सके। वहीं से आपका लिंकेजेस फंडिंग की शुरू होती है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम माय साइड। आई वुड रिक्वेस्ट question, feel free. Yes, sir. Thank you. We have one question from Shilpa ma'am. Shilpa, would you like to? Okay, I'm going to unmute you. Please ask your question. Yes. Shilpa, I've unmuted you. Please ask your question. Okay, I think she must have raised her hand by mistake, sir. If anyone has a question, they can put it in the chat box or reach out to me. I will help you connect with sir. I would request Smriti, आप मेरा email भी share कर दीजिएगा. If they want, they can even ask me later. बिल्कुल sir, I'll share your email address. In the end, sir, we had around 28 to 30 participants. I just wanted to tell you that. Good. And once again, I've shared our social media links on the chat. Please follow us. And I would like to thank Nilanjana and you, sir, for taking out time and for coming and giving us this lecture. Thank you very much, sir. I'm very thankful. Thanks to all the students, and a special thank goes to Ms. Langela as well as Smriti for arranging all the things. It was very smooth. All thanks to you. Thank you. Thank you, sir. Now I'll be ending the meeting. I have the recording. Everyone can reach out to me for the recording. Thank you. You please send me the link of that recording. Sure, sir. I'll send it to you. Thank you. Thank you. Thanks a lot.